Praise God for yet another beautiful Wednesday evening God has given us, helping us to be in His presence week after week so that we can continue learning from His word. परमेश्वर के वचन से लगातार मनन करने के लिए अभी तक परमेश्वर हमारा साथ रहा, हमारा अनुग्रह दिया. परमेश्वर को धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख में बैठे हैं और हम मनन करेंगे. कल का दिन, as you all know, yesterday we got the news that Dr. Ravi Zacharias, a great man of God, is no more in this world. डॉक्टर रवि ज़करियास परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा काम किया है इस दुनिया में. आपको पता है, apologetics was a word which was not known to the world anywhere. Very few people know about what apologetics was, and उसके पीछे वो सुनते थे और उसके पीछे वो जाते थे. And this is a person, Dr. Ravi Zacharias was one such person who brought that term to the common man. Even आम आदमी भी, एक साधारण विश्वास से भी वो apologetics के बारे में जानता है. वो क्रेडिट पूरा डॉक्टर रवि ज़करियास को जाता. So I was just thinking about his life. He didn't start his life as a Bible believer. वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास भी नहीं करता था. एंड यू कैन कॉल हिम इवन एन एथिस्ट. आई थिंक ही यूज्ड दिस वर्ड रिगार्डिंग हिमसेल्फ. वो खुद को भी ऐसा वो मानता था पहले. एंड ही कमिटेड सुसाइड. यू नो दैट दिस ग्रेट मैन आफ्टर 48 years ऑफ मिनिस्ट्री, आज उनका तस्वीर कुछ और है. बट ये तस्वीर नहीं था उनका शुरुआत, ये तस्वीर नहीं था. ही डिडंट स्टार्ट लाइक दिस. ही डिडंट स्टार्ट लाइक ए स्पिरिचुअल जायंट. He started as a failure. उनके जीवन में वो सब कुछ वो पराजित हो गया. वो सोच रहा था there is no meaning in life, and he committed suicide. And you know where he received gospel? At the hospital bed, where everything is lost. He was a person who gave in to despair. He was a person who gave in to the pressures of the world. But वो वहां से जी उठा, and he stood up for Christ, defending the faith, and he lived for the faith because he encountered Jesus in his life. And very interestingly, he didn't encounter in a big meeting or in a church. He encountered that in a bed by reading the Bible. He read the word of God. Jesus came into his heart, changed his life, and he lived 48 years defending the Bible, which gave him a new life. My dear believers who are listening to me, it's a challenge in front of us. The people who हमें बाइबल विश्वासी बोलते हैं, बाइबल मानते हैं, हम बाइबल लेके हम हर जगह जाते हैं. Has this Bible changed you in such a way that you are living the rest of your life for this Bible, for this word of God? I won't say to copy his life, especially to youngsters. I won't call upon all the youngsters to study apologetics and imitate his life and live like Ravi Zacharias. No, that was his part. Now what is your part? आपका और मेरा जीवन में हम कैसे जिएंगे? He has faced death and he has gone into rest. A day is going to come when we have to face our death, and after death we have to face our master Christ as a judge. अगर उस मृत्यु को फेस करना है, अगर मसीहा को वो न्यायी बन के जब आएगा उनको फेस करना है, दिस इज इट. ये वचन आपको मदद करेगा, ये वचन मुझे मदद करेगा. इस वचन के बिना कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग बियॉन्ड दिस वर्ड. सो हिज लाइफ गिव्स मी दैट इंस्पिरेशन दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज अबाउट एवरीथिंग एल्स. He lived defending this, and he died as a warrior of faith. And how are we going to live our life? So with this thought, let's move forward into today's Bible study. हम हमारा आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के साथ इस बाइबल स्टडी में हम प्रवेश करेंगे. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए. आज एक और दिन आपने दिया कि हम आपके सम्मुख में आए, बैठे और वचन में से हम मनन करें. अभी तक इतने सालों से रेगुलरली इस बाइबल स्टडी कंटिन्यू करने के लिए आपने अनुग्रह दिया. आज भी जब हम इस वचन के सामने बैठते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमारा कानों को खोल दो, हमारा आंखों को खोल दो. Let our eyes be open, let our ears be open, so that we see your word, we receive your word into our hearts, and it brings forth fruits into our lives, Master. As we were just thinking about the great life of the man Ravi Zacharias,
We thank you for his life. We thank you that you had brought him to life from death, and you have given him a beautiful life to challenge many people and to make many people live for their faith, Master. As we move forward with our life in this world, we pray that, Lord, we also honor the word of God in our life and live for it, Lord. हम भी हमारे जीवन में इस वचन के आधार पर जीने के लिए, इस वचन को मानते हुए जीने के लिए, इस वचन को सारा आदर देते हुए जीने के लिए हम सबको आप अनुग्रह देना परमेश्वर। हम आगे जा रहे हैं, आपके समूह में बैठ के बाइबल से मनन करने के लिए हमें अनुग्रह दे परमेश्वर। All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen. आइए हम एक गीत गाएंगे, हम सब मिलके एक गीत गाएंगे, उसके बाद हम आज का मनन के ओर हम बढ़ेंगे। बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। सिंहासन सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे ओ आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। Let's continue from where we left last week. I think we have finished Luke chapter 19. हमने Luke chapter 19 हमने finish कर लिया. Now we have to move forward to Luke 20. And maybe we will be able to finish 20, I guess, and maybe even move forward to 21, because here there are a lot of different incidences. हम देखेंगे फिर भी, क्योंकि हर एक चीज से हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा. So let's go forward and turn your Bibles to Luke chapter 20 verse 1. एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मंदिर में लोगों को उपदेश दे रहा और सुसमाचार सुना रहा था, तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए. आपको पहले एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे as we say we are learning continuously a book. हम एक किताब को सीरियसली हम लर्न करके आ रहे हैं, सीरियसली लर्न करके आ रहे हैं.
तो हमने 19 चैप्टर में कहां छोड़ा वो एक बार आपको याद करना है और देखना है। 19 चैप्टर में आप थोड़ा देखो, वहां पे हमने वो घटना देखा था जहां यीशु मसीह मंदिर के अंदर गया और वहां बेचने वाले और खरीदने वालों को वहां से बाहर निकाला। He just drove them away from the temple and he said, "My house will be called as a house of prayer." मेरा भवन प्रार्थना भवन कहलाता है, ऐसा उनको सबको वहां से निकाल दिया। उसके बाद यीशु मसीह मंदिर में प्रचार करने। So now 20th verse is continuing from there. So as he was preaching, one day Jesus was teaching in the temple. तो वहां जो भी बेचने वाले थे, जो खरीदने वाले थे, सबको वहां से भगा दिया यीशु मसीह ने, और यीशु मसीह वहां प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार के बारे में उनको समझा रहे थे। ऐसे ही एक दिन जब वो समझा रहा था, फरीसी लोग और वहां का स्क्राइब्स, द एल्डर्स, सब लोग उनके पास आ गया कुछ सवाल पूछने के लिए। देखेंगे वो क्या सवाल था। 2nd वर्स। और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वो कौन है जिसने तुझे ये अधिकार दिया है? हाँ, अभी जो यीशु मसीह के सामने आके खड़े हैं वो कौन है मालूम है? दे आर द पीपल हु हैव द राइट। किसका राइट? द राइट ऑफ द टेम्पल। ध्यान देने की बात है, उस समय the temple of the Lord was supervised by the scribes, the Pharisees, the elders. तो ये लोग थे वो टेम्पल का important people, the people of authority, the people who were recognized. They were the people in all. सब वो आके पूछ रहे हैं यीशु मसीह से, ये आके आप बहुत कुछ कर रहे हैं, मंदिर से बहुत लोगों को आपने भगा दिया और आप यहां बैठ के वहां बहुत प्रचार कर रहे हैं। आप किस अधिकार से कर रहे हैं, या आपको कौन अधिकार दिया? आपने चीफ प्रीस्ट से अधिकार लेके आए हैं? आपका अधिकार पत्र है आपके पास? अपॉइंटमेंट लेटर है? डू यू हैव द अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द चीफ प्रीस्ट? या आप ऊपर किसी से, या रोमन गवर्नमेंट से, या कहां से आपने कुछ अधिकार लेके यहां बैठे हैं क्या? कहां से आपको ये अधिकार मिला है? They are asking the right question because they were the people who were in authority. So they were asking, हमें पता नहीं था कि कोई यहाँ नए अपॉइंटेड है, बट आप यहाँ बैठ के इतना कर रहे हैं, तो आपको ये अधिकार कहां से मिला या किसने दिया है? Now let's listen to what Jesus has to say. Next word. उसने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ। Now यीशु मसीह इसको सवाल का उत्तर नहीं दिया, उन्होंने भी क्या किया? एक और सवाल पूछा। Now that's not what Jesus normally does. जो भी सवाल पूछते हैं उनको सवाल का उत्तर देते हैं यीशु मसीह, बट यहां पे देखते हैं जब ये they were asking some questions to disturb him, he didn't give them a plain answer. He just gave them another question. As I was just meditating, I was just thinking, apologetics. In apologetics, this is one way of doing. There are certain people who are always there to disturb, and for them, when they ask a question, normally the person who is leading, he normally asks another question, and many of the people is silenced then and there. You would have seen Ravi Zacharias do it many times. When people ask questions, some absurd or really disturbing questions, and when he puts forward a counter question, they are shut down. And I don't know how coincidentally, incidentally or purposefully, this also came today as we were thinking about the life of Dr. Ravi Zacharias. So I was just thinking, all those things. So now, Jesus is not giving a direct answer. He is putting up another question. And he said, I will ask you a question. मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, उसका उत्तर आप देंगे, तो मैं भी आपका सवाल का उत्तर दे दूंगा। क्या है? आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? Very, very difficult question. He asked them, John the Baptist, उन्होंने जो बपतिस्मा दिया था वो स्वर्ग से आया हुआ बपतिस्मा था या मनुष्यों के द्वारा एक बपतिस्मा है? आप मुझे बताओ। तो वो लोग डिस्कस करने लगा। आगे पढ़ेंगे। तब वे आपस में कहने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वो कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों न की? और यदि हम कहें मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हम पर पथराव करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं कि यूहन्ना भविष्यवक्ता था। Yes, आगे। अतः उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते कि वो किस की ओर से था। यीशु ने उनसे कहा, तो मैं भी तुमको नहीं बताता कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ। Now Jesus gave them a question. यीशु मसीह उनके सामने एक सवाल रखा। उस सवाल का उत्तर देखना है। They thought about both the answers and they said we don't know.
ये मैं इस क्वेश्चन में 1 मिनट सोच रहा था. When Jesus asked a question, they didn't take this question to ponder over. जब यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, वो सवाल का उत्तर, दोनों तरफ का उत्तर उनको पता था. They didn't want to take it seriously into their lives. At least now they should have thought about that question. अभी at least वो question के बारे में सोचना था. But what they were doing, they were keeping themselves safe from the answer. वो एक soft answer है, हमें पता नहीं है. जब भी उनको पता था, क्या पता था? क्योंकि वहां पे लिखा है, वो लोग सोच रहे थे यदि हम बोलेंगे ये स्वर्ग से आया तो यीशु मसीह का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? आपने इसको क्यों नहीं विश्वास किया? अगर लोगों के ओर से आया ऐसा बोलेंगे तो लोग सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों का एक प्रॉफिट मानते थे, तो लोग इनको पथराव करेंगे, डर जाए. They knew both the answers, but they didn't take the answers into their lives. They just put it there and they were just there for debating. वो लोग वहां पे सिर्फ डिबेट करने के लिए आए थे यीशु मसीह के साथ. They just wanted to have a debate, nothing else. They were not serious about the question what Jesus put forth in their life. हम भी बहुत बार बाइबल लेके क्वेश्चंस उठाते हैं. एंड नाउ क्वेश्चंस पूछना कभी भी गलत नहीं है. मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है. जब निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह ने बोला यू हैव टू हैव रीबर्थ इन योर लाइफ. तो तुरंत निकोदेमस ने पूछा, अरे इतना बड़ा होने के बाद मां का गर्भ में वापस जाके कैसे एक इंसान आ सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता. He asked a question. That was a genuine question. And Jesus answered his question. एक genuine question था जानने के लिए, तब यीशु मसीह ने उत्तर दिया. बट यहां पे ये लोग हैं, वो कौन है? They were the scribes and the elders. इसमें chief priest लिखा है, फर्स्ट वर्स में पाठ देखो. The chief priest, the scribes and the elders. Chief priest मतलब क्या है? आज के भाषा में लेना है तो बिशप ले लो या चीफ पास्टर ले लो. द पीपल हु नो द बाइबल. स्क्राइब्स कौन है? बाइबल लिखने वाला लोग, बाइबल को कॉपी करने वाला लोग, बाइबल का एक एक अक्षर जानने वाला लोग. दे न्यू बाइबल इन एंड आउट. बट व्हेन दे वर क्वेश्चनिंग ओनली टू डिबेट. एंड व्हेन दे वर फेसिंग क्वेश्चंस, दे टुक द सॉफ्ट साइड. वो आराम से उस क्वेश्चन से बाहर आके हमें पता नहीं है, अरे थोड़ा सोचो वहां पे. नहीं, वो सोचना नहीं चाह रहे थे. वो क्वेश्चन अपना लाइफ में लेना नहीं चाह रहे थे. दे वर जस्ट डिबेटिंग एंड दे डिडंट गेट एन आंसर. व्हाट डिड जीसस से एट द लास्ट? मे बी आपको आंसर नहीं दूंगा. when we have this attitude of questioning Jesus, या debating with Jesus, या debating with God, many times we get this answer. फिर हम बोलेंगे हमें समझ में नहीं आता, हमें इसका उत्तर नहीं मिला. क्यों उत्तर नहीं मिला मालूम है? क्योंकि हम जानने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं. हम हमारे मजाक के लिए, हमें बहुत कुछ पता है वो दिखाने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं. आगे भी इस चैप्टर पूरा यही आपको मिलेगा. This chapter fully you will see these people coming and bombarding Jesus with questions that they think they are intellectual. वो लोग सोच रहे थे कि हमें बाइबल का बहुत कुछ पता है, तो यीशु मसीह से उल्टा सीधा सवाल पूछ रहे थे. यीशु मसीह से भी ऐसे आंसर मिला उनको. Their life didn't improve, their life didn't change. They asked questions, but nothing happened in their life. So as we are asking questions from the Bible, let's see how we are asking questions. Are we asking questions because we need to know the answer, or are we just there to debate on our knowledge? जब हम परमेश्वर के वचन से सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिबेट करने के लिए पूछ रहे हैं, या उसको जानने के लिए और जानने के लिए हम पूछ रहे हैं, ये हम सोचने का एक बात है. तो यहां पे उन लोगों को उत्तर नहीं मिला, मगर यीशु मसीह आगे जाके एक दृष्टांत उनको समझाया. आगे पढ़ेंगे 9th वर्स. तब वह लोगों से ये दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया. एक वाइनयार्ड लगाया और किसानों के हाथ में इसको सौंप दिया और ठेका देके वो दूर चला गया. इसमें लिखा फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत दिन के लिए वो दूर चला गया. आगे जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीटकर छूछे हाथ लौटा दिया. तो अभी फल
का समय आया, सीजन आया, फ्रूट्स लेने के लिए भेजा, एक दास को भेजा, उसको मार पीट के भगा दिया। आगे फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीटकर और उसका अपमान कर कर खाली हाथ लौटा दिया। सेम, एक और भेजा, उनको भी पीटा, अपमान किया, खाली हाथ वापस भेज दिया। फिर उसने तीसरा भेजा और उन्होंने उसे भी घायल करके निकाल दिया। उनको अभी एक और स्टेप, घायल कर दिया और भेज दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभव है वे उसका आदर करें। यस, जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें कि मीरास हमारी हो जाए। आगे और उन्होंने उसे दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? यस, नाउ ही सेज, वो दाख का बारी का मालिक अपने बेटे को भेजा। उन्होंने सोचा अपने बेटे का आदर करेंगे, बट ये लोग ने क्या किया? उस बेटे को मार दिया। उन्होंने सोचा ये वारिस है, उसको मारेंगे तो सब कुछ हमारा हो जाएगा, मार दिया। अब जीसस पुट अ क्वेश्चन एंड ही सेड, व्हाट विल द मास्टर डू व्हेन ही कम्स? ध्यान दो, यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या करेगा वो स्वामी जब वो वापस आएगा, और यीशु मसीह ने खुद उसको आंसर भी दिया। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे, 16th वर्स। वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी दूसरों को सौंपेगा। यस, वो आके क्या करेगा? वो जो भी वहां पे लोग थे उनको नाश करेंगे और उस दाख के बारी को किसी और के हाथ में सौंपेंगे। तुरंत सी द रिएक्शन। यह सुनकर उन्होंने कहा, ये सुनकर उन्होंने कहा, मतलब कौन है? चीफ प्रीस्ट, द स्क्राइब्स एंड द फैरिसीज। उन्होंने क्या कहा? परमेश्वर करे ऐसा न हो। परमेश्वर करें ऐसा नहीं ना हो। Now see, when Jesus has put a parable in which he said they have killed the son, what will the master do? Master will come and kill. वो लोग क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर करे ऐसा ना हो। So what do they mean? They say वो मालिक आने के बाद वो क्या नहीं करना चाहिए? इन दुष्ट लोगों को मारना नहीं चाहिए, है ना? वही तो बोल रहे हैं ना वो लोग क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर करेंगे ऐसा ना हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वहां पे यीशु मसीह इन्हीं लोगों को पॉइंट करके ये दृष्टांत कहा। आगे पढ़ेंगे। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यस, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। आगे। उसी घड़ी शास्त्रियों और प्रधान याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वे समझ गए थे कि उसने हम पर यह दृष्टांत कहा। क्योंकि वे समझ गए थे कि यीशु मसीह ने ये दृष्टांत किसके लिए कहा? उनके लिए, इन्हीं लोगों के लिए। कौन थे? चीफ प्रीस्ट थे, फैरिसीज थे, स्क्राइब्स थे, द मेन पीपल हु वर इन चार्ज ऑफ द टेम्पल। मंदिर का अधिकार रखने वाला लोग। इसलिए ये लोग पहले आके पूछा था आपको कहां से अधिकार मिला था करके यीशु मसीह को क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये लोग थे जो मंदिर का अधिकार रखने वाला लोग। तब नाउ यीशु मसीह इनको वो दृष्टांत से समझा रहा है कि दाख के बारी का मालिक कुछ समय के लिए दूर चला गया, तो उन्होंने वो दाख का बारी को किसी के हाथ में दे के गया। सो मंदिर का एक मैनेज करने का या मंदिर को संभालने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे वो वाइनयार्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट्स को दिया है, वैसे ही इस मंदिर का, इस कलीसिया का संभालने का अधिकार परमेश्वर ने इन्हीं लोगों के हाथ में दिया है। अब यीशु मसीह पूछ रहे हैं, जब बेटा आया, बेटे को भी वो लोग क्या कर दिया? मार दिया। तब मालिक वापस आएगा, मालिक क्या करेगा? इन सब लोगों को मारेगा और इस दाग के बारी को उठा के किसी और के हाथ में सौंपेगा, है ना? वो लिखा है ना, 16th वर्स पढ़ेंगे। वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाग की बारी दूसरों को सौंपेगा। So there was a clear cut judgment coming on these people saying, आपके हाथ में एक दाग के बारी दिया है, उसके और आपको जो जिम्मेदारी था वो आपने सही से नहीं निभाया, और आपके पास आया पुत्र, और आप लोग क्या करने वाले हैं? पुत्र को मारने वाले हैं। इसलिए यीशु मसीह ने 17th वर्स में भी बोला, द स्टोन दैट द बिल्डर्स रिजेक्टेड हैज बिकम द चीफ कॉर्नरस्टोन।
ये दिस प्रोफेसी रेफर्स टू जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट जिसको यहूदी लोग ने, ये फरीसी लोग ने, स्क्राइब्स और चीफ प्रीस्ट ने, उन्होंने माना ही नहीं, उनको रिजेक्ट कर दिया था. उनको परमेश्वर ने क्या बना दिया? कलीसिया का कॉर्नरस्टोन बना दिया. ही इज द कॉर्नरस्टोन ऑन विच द एंटायर चर्च इज बीइंग बिल्ट अप. सो ही सेड, नाउ यू didn't keep up the responsibility. You will be destroyed, and this responsibility will be given to someone else who would be taking care of it properly. So आज अगर हम आज के हिसाब से इसको देखने के लिए कोशिश करें, this is a warning message coming to all the people who are responsible for the church of God. If we are not careful enough about the responsibility that is given in our hands, a day is going to come when it will be taken off from our hands and given to someone else who would be able to do it in a better way. कि यही हुआ है वहां पे. जो अथॉरिटी, अधिकार रखने वाले लोग थे, उनसे वो छीन लिया गया था आने वाले दिन में. That happened many years later. आगे बढ़ेंगे हम. Let's see this. So now the chief priests and the scribes, they were like irritated because Jesus is pointing towards them. इसमें लिखा है वो सीधे उनको देखे. 17th वर्स में लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन. उसने उनकी ओर देखकर कहा, उनके ओर देख के, मतलब he looked directly to them and said, yes, this is you who will be destroyed, and आपके जगह पे किसी और के हाथ में ये दिया जाएगा. तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया. अब वो सोच रहे हैं इनको ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं डील कर सकते. वी शुड ट्राई टू डील विद हिम इन सम डिफरेंट वेज. आगे पढ़ेंगे हम 20th वर्स. और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धरकर उसकी कोई ना कोई बात पकड़े, ताकि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार के हाथ में सौंप दे. अब उनको समझ में आ गया, हमारे पास जो अधिकार है उस अधिकार को रख के कुछ भी नहीं कर सकते इनको. अब क्या करेंगे हम? उनका मुंह से ऐसा कुछ शब्द निकालेंगे ताकि वो उनको, हम किसके हाथ में पकड़ाए हैं? हाकिमों के हाथ में, गवर्नर के हाथ में, रिस्पॉन्सिबल पीपल के हाथ में, ऑफिसर्स के हाथ में पकड़ा देंगे. So they want to trick him. Again they are coming out with a question only to trick him. उनको कैसे भी उनके मुंह का वचन में पकड़ना है, बस इतनी सी बात है. वो लेके आ गया. अब क्या सवाल लेके आ रहे हैं देखेंगे हम आगे. उन्होंने उससे ये पूछा, यस, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है. क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? अब देखो, I loved this introduction they gave. 21st वर्स में यीशु मसीह के पास आके वो इंट्रो दे रहे हैं और बोल रहे हैं, प्रभु या गुरु, हम जानते हैं कि आप ठीक कहते हैं और सिखाते भी. आप ठीक कहते हैं और ठीक सिखाते हैं, और आप किसी के लिए भी क्या नहीं करते हैं? पक्षपात नहीं करते. यू आर नॉट पार्शियल टुवर्ड्स एनीवन बट ट्रूली टीच. आप सच्चाई के साथ क्या सिखाते हैं? आप परमेश्वर का मार्ग. देखो इंट्रो, देखो कितना हेवी इंट्रो दे दिया उन्होंने. बोले यीशु मसीह के पास आके आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बोलते हैं, आप सच्चाई के साथ सिखाते हैं, आप बोलते हैं, सिखाते हैं, वो सब सही है. नाउ आई आस्क द क्वेश्चन, सब सही है तो आप क्यों नहीं मानते हैं भाई? राइट? इफ यू से दैट जीसस इज टीचिंग राइटली, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग, देन व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट? You know, Bible is full of teachings of the word, teachings of the Lord. That's the true word. इसको एक लिटरेचर के तरह से पढ़ने से या एक सिलेबस के तरह पढ़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है. हम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, सच्चाई है, it's written good, बस इतना ही है. Until and unless you take it into your lives, you will be only debating. इस वचन को लेके जब तक हम इसको जीवित वचन नहीं मानेंगे, उसको हमारे जीवन में अंगीकार नहीं करेंगे, इसके अधिकार के लिए हम हमें समर्पण नहीं करते हैं, तब तक हम इसके ऊपर डिबेट करते ही रहेंगे. आगे बढ़ नहीं सकते हमारे आत्मिक जीवन में. इनके साथ यही हो रहा था. They were debating. They were never improving in their spiritual life. Now, my dear friends, let's stop that attitude if we have been doing such. हमें वचन के अधिकार के सामने घुटने टेकना है, हमें समर्पण करना है वचन के सामने.
जब तक हम वो एटीट्यूड तक नहीं आए हैं, हम जितने भी क्वेश्चन पूछें, जितने भी काम करें, हम बोलेंगे ये सही है, वो सही है, वहीं रुकेगा, हमारे जीवन में वो काम नहीं कर सकता है। They said you speak and you teach truly. आप सब कुछ सही करते हो, सच्चाई के साथ करते हो, अच्छा परमेश्वर का मार्ग सिखाते हो, बट हमें उसमें चलना नहीं है। आप जो सिखा रहे हैं बहुत अच्छा है, हम आपके लिए ताली बजाएंगे, वेरी गुड बोलेंगे, आज का मैसेज वंडरफुल मैसेज था, क्या मैसेज बोला करके हम सबको हम इनकरेज करेंगे, लोगों को भी बोलेंगे आज हमारा पास्टर का मैसेज बहुत सुंदर था, क्या बोला यार, मतलब द वे ही टुक दिस वर्स, द वे ही टुक दैट, इसको ऐसा ऐसा मजा आया। बस हम हमारे जीवन में कुछ काम नहीं आने वाला है ये चीज। सो हम ध्यान रखें, जब भी वचन पढ़ें उसके सामने हम समर्पण करें। आगे जाएंगे और नेक्स्ट वर्स हम देखेंगे, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड। एक बार फिर पढ़ेंगे, क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? अभी इन लोगों को कैसर को कर देना है इसलिए ये नहीं पूछ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह क्या उत्तर देंगे, कैसर को नहीं देना है, हम यहूदी लोग हैं, हम ऐसा करना वैसा करना है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलेंगे तो इनको पकड़ के क्या दे देंगे, कैसर के हाथ में या ऑफिशियल्स के हाथ में दे देंगे और बोलेंगे ये एक रिवोल्ट बना रहा है, यहाँ पे एक रिबेलियन बना रहा है, यहाँ ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कर नहीं देना है करके बोल रहा है। ऐसा बोल के इनको वो गवर्नर के हाथ में पकड़ाना था। They were expecting Jesus to give such an answer because this was a tricky answer, tricky question to answer. ये सवाल ऐसा है कि वो ये भी नहीं बोल सकते, वो भी नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते कि नहीं दो, मत दो, या देना चाहिए करके बोलेंगे तो बाकी साधारण लोग बोलेंगे नहीं, कर देने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ये रोमन का आदमी है। तो दोनों तरफ यीशु मसीह अब नहीं बोल सकता है। कर देना है ऐसा बोलेंगे तो लोग यीशु मसीह के खिलाफ हो जाएंगे, बोलेंगे देखो ये रोमन गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है, कर देने के लिए बोल रहा है, तो पीपल विल गो अगेंस्ट हिम। बट इफ ही से डोंट गिव टैक्स, the government will go against him. So that was a tricky question for him. And now Jesus handled it with all his wisdom. He is the wisdom. उसके सामने जाके आप क्या मजाक कर रहे हो, उसके यीशु मसीह के लिए ये मजाक लगेगा। He is the wisdom with which the world was created. He is the wisdom with which the earth is put hanging on the universe. इस पृथ्वी को आहाय मंडल में ऐसे छोड़ रखा है, मतलब इसको हैंग करके रखा है with nothing, किसी के ऊपर नहीं, बट ऐसे ही छोड़ रखा है। He is the wisdom behind all these things. And they are asking question to wisdom personified. And you know, Jesus would have really laughed at his heart when he asked this, listen to this question. He came out with a brilliant, a gem of an answer. उन्होंने क्या बोला? उसने उनकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, हाँ, he understood what they are asking. And yeah, एक दिनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा कैसर का। उसने उनसे कहा तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। yeah, so that was a very plain statement. What belongs to Caesar, Caesar को दो, what belongs to God, God को दो। तो इसको आप दोनों को मिलाओ नहीं। तो क्या हुआ आगे 26th वर्स? वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। चुप रह गया इनका उत्तर को वो सुन के, बिकॉज वो हाँ भी नहीं बोल सकता था, ना भी नहीं बोल सकता था। बट वहां पे यीशु मसीह इसको क्लियरली डिवाइड करके बोल दिया, जो कैसर का है कैसर को दे दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर का दे दो। And now there are people who are going behind this to take a lot of spiritual meaning out of this. People who are there to literally take out a lot of meanings out of this. And I am not for that, both. मैं बस इसमें यही देख रहा हूं कि यीशु मसीह के सामने एक सवाल पूछा और यीशु मसीह वो सवाल को खत्म ही कर डाला। You know, that was the brilliance, that was the wisdom of Jesus. Before him, none of our brilliant questions can stand. वो समझने का बात है। कोई भी ये सोच रहे थे कि अभी यीशु मसीह गया, खत्म कर डालेंगे, इस क्वेश्चन के आगे वो कुछ नहीं बोल सकता है। बट देयर ही डेमोलिश्ड देयर arrogance, their intelligent arrogance. So I was excited about this. No intelligent arrogance can stand before my master Jesus, because he is wisdom himself. वो खुद ज्ञान है, खुद विस्डम है। उनके सामने क्या सवाल रुकेगा, क्या इंटेलिजेंस रुकेगा? He is the master of everything. He demolished their arrogance there.
आगे जब ये ग्रुप का साइलेंट कर दिया, दूसरा ग्रुप वहां पे आ गया एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके। 27th वर्स। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा। अब सदूकी लोग जो अभी तक पिक्चर में नहीं है, वो लोग को समझ में आ गया कि यीशु मसीह बाकी सबको साइलेंट कर दिया। अब वो लोग सोच रहे हैं हाँ अब हमारे बारी, देखो ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, अब बाकी कौन बचा है? मैं बचा हूं। ये डिनोमिनेशन गलत है, ये डिनोमिनेशन गलत है, ये डिनोमिनेशन गलत है, ये ग्रुप गलत है, वो ग्रुप गलत है, वो पास्टर गलत है, ये गलत है, अब मैं बचा हूं, अब मैं जाके यीशु मसीह से सवाल पूछने वाला हूं। यू नो, मे बी दिस इज टॉकिंग अबाउट अस ओनली। अगर हमारे समय में यीशु मसीह होता है ना, हम भी इन्हीं ग्रुप में होते हैं। हम जाके बोलते हैं देखो यीशु मसीह ने वो ग्रुप का मुंह बंद कर दिया, यीशु मसीह ने इस चर्च वालों का ग्रुप का मुंह बंद कर दिया, अब देखो इनका सवाल तो यीशु मसीह ने मार डाला, खत्म, अब बचा सिर्फ मैं अब जाके यीशु मसीह से बाइबल से वचन पूछूंगा, बाइबल से क्वेश्चन पूछूंगा। दैट्स व्हाट दे डिड, सदूकी लोग। एक और जगह पे किसी और बुक में लिखा है कि सदूकी लोग को समझ में आ गया कि यीशु मसीह ने बाकी सबका मुंह चुप करा दिया, तो वो आके अपना ब्रिलियंस दिखाने के लिए आया। यहां पे वो शब्द नहीं लिखा है, बट इन अनदर बुक इट इज रिटन दैट दे वेंट एंड व्हेन दे न्यू दैट जीसस हैज साइलेंस्ड ऑल द अदर पीपल, दे केम इन विद देयर ब्रिलियंस टू शो। यहां पे भी यही हुआ था। हाँ बाकी सब गलत है, देखो यीशु मसीह ने सबका मुंह बंद कर दिया, बाकी सब गलत है, मैं सही हूं। आके गया और वो एक इंपॉर्टेंट मैटर वहां पे उठा रहे हैं, पढ़ेंगे आगे। हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले। हाँ ये कहानी हम जानते हैं, सो लेट्स डोंट वेस्ट अवर टाइम रीडिंग ऑल दोस थिंग्स। उन्होंने, मूसा ने लिखा है अगर एक कपल में हस्बैंड मर गया, उनका बेटा नहीं था, husband का brother should marry the widow and give her a child so that the child would be named after the deceased। वो जो भाई मर गया उसका संतान को आगे लेके जाने के लिए जो अभी बच्चा पैदा होगा वो उसका नाम पे जाएगा। So that was a tradition in those olden days। Now they are asking, हमारे बीच में भी ऐसा था कि एक ने किसी से शादी किया, वो पति मर गया, उसका भाई ने शादी किया, वो भी मर गया, ऐसे 7 भाई लोग थे, 7 ने उस एक ही स्त्री से शादी किया था, 7 मर गया और वो स्त्री भी मर गया। अब ये पूछ रहे हैं जब रिसरेक्शन होगा इनमें से ये किसकी पत्नी होगी? आगे पढ़ेंगे, वो जाके हम पढ़ेंगे 33rd वर्स। इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी? किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। हाँ, so they are saying now they deny there is resurrection, है ना। ये लोग, सदूकी लोग ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि रिसरेक्शन है ही नहीं, जितना जीना है जियो, मरो, मर जाओ, बस खत्म, हमारा जीवन मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है, वहां पे वापस हम जी उठने का एक रिसरेक्शन कुछ भी नहीं है। सो नाउ दे वांट टू ट्रिक जीसस। जीसस को मजाक उड़ा रहे हैं, आके बोल रहे हैं 7 लोग थे, 7 शादी कर दिया, वो भी मर गया, अभी वो स्त्री भी मर गई, अब पुनरुत्थान के समय में ये किसकी पत्नी होगी? That was a difficult spiritual question to answer, and they thought they have nailed Jesus down. Now Jesus, with all clarity, crystal clear, he is putting the words. आगे पढ़ेंगे 34th verse। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है। इस युग के संतान, ये हम एक युग में हैं, इस युग के संतान क्या करते हैं? शादी करते हैं और पढ़ो। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। तो अब एक युग चल रहा है, एक युग आने वाला है, जो भी लोग उस युग का लायक, ऐसे लिखा है ना, क्या लिखा है एक बार फिर पढ़ेंगे 35th वर्स। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को हाँ प्राप्त करें। अब एक युग में है, एक और युग आने वाले हैं, उस युग को प्राप्त करने के लिए, उस पुनरुत्थान का अनुभव में आने के लिए योग्य जीवन जीने वाला लोग, ऐसा लिखा है ना। इस युग से उस युग ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट नहीं जा सकते हैं हम।
ठीक है, इस युग में हो गया, जीवन हो गया, खत्म हो गया, उस युग में हम ऐसे चले जाएंगे। नहीं, उस पुनरुत्थान में भाग लेना है तो, उस युग में युग को प्राप्त करना है तो उसका योग्य एक जीवन कहां जीना है? इस युग में जीना है। यही लिखा है ना, एक बार फिर पढ़ेंगे। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। हाँ, वहां पे ये सब नहीं है। आगे, वे फिर मरने की भी नहीं। हाँ, वो वहां तो मरेंगे ही नहीं। तो आगे, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। yes, after being sons of resurrection they will be sons and daughters of God। यहां पे मृत्यु तक हमें एक परिवार में परमेश्वर ने जोड़ के रखा है फॉर म्यूचुअल सपोर्ट एंड हेल्प। बट ये सब चला जाएगा, ये सारे रिश्ता जो वी आर कीपिंग इट क्लोज टू आवर सेल्फ विल ऑल गो अवे, एंड व्हेन वी गो अलोन टू दैट एज। उस युग में हम अकेला जाएंगे, ऐसा मिसेस या मिस्टर बन के नहीं, एज सन्स एंड डॉटर्स। यहां हम बहुत लिखते हैं मिसेस एंड मिस्टर, मिस्टर एंड मिसेस, बहुत कुछ जोड़ जोड़ के लिखते हैं। वहां ये जोड़ने वाला कुछ भी नहीं है। देयर यू गो एज सन और डॉटर and you live there as sons and daughters of God. As sons and daughters, you have responsibility of a family on you. And वो जीवन अलग होगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए, you ask me how will heaven be like, या how will be life after death, I seriously don't have an answer. मेरे लिए वो मेरा imagination से बाहर है। If I always use this statement, if you can understand heaven, then heaven is not a place worth living for. अगर आप heaven को define कर सकते हैं, फिर heaven ऐसे जीने लायक एक जगह है ही नहीं, क्योंकि it has come within your definition। इतना मतलब ये इतना छोटा है क्या, आपके दिमाग में फिट हो गया? नहीं, परमेश्वर के साथ जीने वाला जीवन उतना छोटा नहीं हो सकता कि आप अभी इसके बारे में समझ सकते हैं। बस इतना हमें समझ में आ रहा है कि वहां पे शादी करना, शादी में देना लेना, फिर वो परिवार संभालना, पति को संभालना, पत्नी को संभालना, खाना बनाना, कपड़े धोना, वो सब नहीं है। वी विल बी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनके। So there should be some responsibilities of sons and daughters to manage the family, to take this family forward. I don't know how it will be, but हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, उतना मैं समझता हूं। ये हमारा सोच से बाहर एक जीवन है। ये सदुकी लोग ऐसा क्यों सवाल पूछ रहे थे? क्योंकि उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कैसे मरने के बाद हम गाड़ लेंगे, वो शरीर पूरा नाश हो जाएगा, फिर कैसे जी उठेंगे। They were limited to that, उससे बाहर नहीं आ पा रहे थे। हम भी बहुत कुछ में लिमिटेड है। I really laugh when people come and ask me this question. बहुत लोग मुझसे आके ये पूछेंगे, ये स्वर्ग में जाके क्या करना है? बैठ के हमेशा हालेलुया करके गाना गाते रहना बोरिंग है। I really laugh at this people, at the way people are thinking about heaven. Do you think heaven is going to be like that? होने का संभावना ही नहीं है। My understanding क्या है मालूम है? ऐसे told you, वो गाना गाने के लिए या प्रेज करने के लिए ऑलरेडी वहां पे हजारों में लाखों में एंजल्स है। They are servants of the Lord, but you and me are sons of the Lord, sons and daughters of the Lord. That life is going to be so beautiful, so good that you cannot even no words. हम ऐसे ही सोच के, मतलब छोटा सोच रख के हम सोच रहे हैं हेवन के बारे में, वहां जाके पूरा समय हालेलुया स्तोत्रम गाना है। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है स्वर्ग। If your definition of heaven is that, please delete that. Heaven is not going to be like that. You are sons and daughters of God. परमेश्वर का बेटा और बेटी है आप, परमेश्वर का। स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर का बेटा और बेटी। ये एक the highest rank that you can ever imagine of, and the highest privilege that you can ever get in your life.
वो उस युग को प्राप्त करने के लिए इस युग में उस युग का योग्य जीवन प्राप्त करना, योग्य जीवन हमें जीना जरूरी है. दैट्स द पॉइंट दैट वी नीड टू टेक आउट फ्रॉम दिस. These people are stuck with death. They are stuck with family. शादी, ये किससे शादी किया, वो किससे शादी किया, तो आने उस समय में किसका पति होगा, किसका मिसेस है, मिस्टर है. They are worried about that. They are worried about how you can get resurrected. Let us all come out of all these things. We have a beautiful life to be called as sons and daughters, inheriting that privilege of being called as sons and daughters. वो युग आने वाला है. क्या इस युग में हम उस युग प्राप्त करने लायक जीवन हम जी रहे हैं या नहीं, वो हम सोचें. आज हम उस महान व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे थे, डॉक्टर रवि सकरियास के बारे में. He lived out his life defending the Bible because he knew that मैं कुछ भी करूं इस दुनिया में, मैं जा रहा हूं मेरे मास्टर के पास, उसका बेटा बनने के लिए मुझे वो चाहिए. एंड आई विल डिफेंड दैट फेथ. उस विश्वास के लिए मैं खड़ा रहूंगा. और वो खड़ा रहा. हम किस विश्वास के लिए खड़े हैं? हमारे जीवन में वो दिखता है क्या? ये वचन हमारे जीवन में दिख रहा है क्या? उस युग के बारे में कभी सोचे हैं क्या? उस युग का योग्य जीवन जीने के लिए हम अभी कुछ कोशिश कर रहे हैं या नहीं? Let's be serious. We all have to face death once. ये सदू की लीग बोलने से कुछ नहीं होने वाला है. To die once and to meet and to stand before judgment once, that is given for every man. एक बार मरना और एक बार मसीह के सामने न्याय होने के लिए खड़ा होना सारे मनुष्य के लिए नियुक्त है. इसमें से आप या मैं एक्सक्यूज नहीं पा सकते हैं. Are you ready to face death? Are you ready to face your master? Shall we close our eyes? We are not finishing this chapter, but doesn't matter. Shall we close our eyes? एक युग आने वाला है, हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्री माना जाएंगे. उस युग को प्राप्त करने के लिए इस युग में उसका योग्य जीवन जीना है. क्या आप तैयार है या नहीं? बाइबल क्यों पढ़ते हैं? बाइबल से सवाल क्यों पूछते हैं? मैसेज क्यों सुनते हैं? मैसेज का सवाल क्यों पूछते हैं? अगर हम उसको हमारे जीवन में लेने के लिए कर रहे हैं, सब सही है. बट फॉर फन एंड डिबेट, अगर आज तक हमने डिबेट करने के लिए या मुझे ज्यादा पता है वो दिखाने के लिए, या आप जो समझा रखा है वो गलत है, मैं जो समझा रखा हूं वो सही है, वो दिखाने के लिए आप बाइबल लेके अब लोगों के सामने खड़ा है, तो वो सब छोड़ दो, क्योंकि वो उस युग का योग्य जीवन नहीं है. वचन क्या बोल रहा है, मेरे लिए क्या बोल रहा है, मैं उसके सामने समर्पण कर रहा हूं या नहीं, वो सोचें. क्योंकि एक युग आने वाले हैं, उसका योग्य जीवन हम जीना है. हम प्रार्थना करें. स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए. आपके जीवित वचन हमसे बात किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. हम इस युग में जीते हैं. इस युग का बहुत सारे चीज हमारे चारों ओर है, मगर एक युग आने वाले हैं जहां हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्री जाना जाएंगे. हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उस युग को प्राप्त करने लायक जीवन हम इस युग में जीने के लिए हमें अनुग्रह देना. टू रिसीव दैट एज, टू गेट इनटू दैट एज, लेट अस लिव अ लाइफ दैट इज वर्थ इन दिस एज, मास्टर. लेट अस नॉट लिमिट आवरसेल्फ टू जस्ट रेसिंग क्वेश्चंस ऑन द बाइबल, बट लेट अस kneel down before your word when it comes to us, Lord. हम किसी के ऊपर उंगली दिखाने के लिए नहीं, या हमें बहुत कुछ आता है वो दिखाने के लिए नहीं, बट वचन पढ़ें, वचन के सामने नम्र और दीन होके हमें परखें और हमें समर्पण करें, ताकि हमारे जीवन उस युग को स्वीकार करने का योग्य जीवन बनने दो. Thank you, Lord, for talking to each and every one of us as we are deciding one more time, as we are submitting our life one more time in your presence. We pray for your guidance to be with us, your presence to be with us, ताकि उस दिन तक जिस दिन हम आपसे मिलेंगे, आपका पुत्र और पुत्री कहलाएंगे, तब तक हमारे प्राण, हमारे आत्मा, हमारे शरीर, सब कुछ निष्कलंक आप संभालना परमेश्वर. Because you are faithful enough
to keep our body, soul and mind pure until the day of Christ. We once again submit everything before you. All glory and honor be to your name alone. In Jesus' precious name we pray. Amen. Amen.